Modi killer. Killer, killer. We want. We want. We want. One slogan. One slogan. One flag. Go India, go back. One slogan. One flag. Go India, go back. No more. No more. No No more. more. No more. Occupation, no No more. more. No more. Occupation, no more. भैया ਸਾਡੀ ਪਿਕਚਰ ਆਣ 2 किलोमीटर चल के आए हैं सर जी। थक गए कश्मीर आज इतना कश्मीर बनेगा तेरी हिम्मत वाला। रोज रोज का सुधरे भी भाई साहब मास्क पहन लें आपका मास्क सर है पानी का कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लड़के रहेंगे आजादी। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ यकजहती के लिए यहाँ पे एक मुजाहरे के लिए इकट्ठे हुए हैं। साल के साल ये दिन मनाया जाता है, लेकिन जो इस वक्त वादी में हो रहा है, ये वीडियोस दिखा रही हैं, मीडिया कवर कर रहा है पिछले तकरीबन 1100 दिन से, वो कुछ इससे ज़्यादा मांगता है जो इस वक्त पाकिस्तान पिछले 3-4 साल से अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए जो उन पर जुल्म हो रहा है, जो इस्तबदाद का निशाना बन रहे हैं, ये काफ़ी नहीं है। हमें मिन हैसुल कौम जो है ये बार बार इस बात का इआदा करना चाहिए, तजदीद करनी चाहिए कि कश्मीर के साथ हमारी कमिटमेंट जो है वो लाजवाल है। उसमें कभी भी इंशाअल्लाह कमी वाक़या नहीं होगी, और पाकिस्तान के अंदरूनी हालात जो हैं वो हमारी इस कमिटमेंट को खुदा न खास्ता कभी भी डिल्यूट नहीं करेंगे। आपने ये इज्तिमा किया, मैं फॉरेन ऑफिस का शुक्रगुजार हूँ। और पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में इस किस्म के मुजाहरे हो रहे हैं, लेकिन मैं आखिर में ज़रूर कहूँगा
کہ سرینا کے سامنے بورڈ لگانے یا مظاہرے جو ہیں یہ کافی نہیں ہے. کشمیر کاز جو ہے وہ ایک رستہ ہوا زخم ہے پچھلے 75 سال سے، اور وہ مرہم مانگتا ہے، اور وہ مرہم جو ہے پاکستان کی عوام کی کمٹمنٹ ہے، اور وہ کمٹمنٹ جو ہے ہر سطح پہ ڈیمنسٹریٹ ہونی چاہیے. وہ صرف جو ہے یہ سال کے سال ان دنوں میں ڈیمنسٹریٹ جو ہے وہ نہ ہو، وقفے کے بعد جو ہے ڈیمنسٹریٹ نہ ہو، بلکہ ہر فورم پہ وزارت خارجہ تو ایک اپنا فرض ادا کرتی ہے، لیکن پاکستان کی عوام جو ہے اس کو یہ کمٹمنٹ جو ہے ڈیمنسٹریٹ کرنی چاہیے. ہماری افواج نے جنگیں لڑی ہیں اس کاز کے لیے، خون شامل ہے پاکستانیوں کا 48 سے لے کے آج بھی کشمیر کے لیے جو پہرا دے رہے ہیں کنٹرول لائن پہ یا ورکنگ باؤنڈری پہ. میں ان کی ہمت اور جرأت اور کمٹمنٹ کو سلام کرتا ہوں. آخر میں شرکاء کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ایک دفعہ پھر ریپیٹ کروں گا کہ پاکستان کی سیاسی قیادت اور پاکستان کے طول و عرض میں رہنے والی آبادی جو ہے اس کو کشمیریوں کے ساتھ اپنی سالیڈیرٹی، کمٹمنٹ، محبت اور کشمیر کا کاز کے ساتھ جو وابستگی ہے اس کو زیادہ فورسفلی، زیادہ ایفیکٹولی ڈیمنسٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے. وما علینا الا البلاغ. کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان. لے کے رہیں گے آزادی، لے کے رہیں گے آزادی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، میں فارن آفس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، خواجہ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، آج ہم جس ریلی میں اکٹھے ہیں یہ ایک ایسے دن کی یاد کے لیے ہے، ایک ایسے دن کو، ایک گھناؤنے دن کو منانے کے لیے ہے. کشمیریوں پہ استبداد اور ان پہ جبر کی داستان یہ 3 سال کی نہیں ہے، یہ تو پچھلے 70 سال کی ہے، اور ہر آنے والا دن ان کے اوپر استبداد بڑا ہے، جبر بڑا ہے، ظلم بڑا ہے، لیکن ان کے حوصلے نہیں ٹوٹے. انہوں نے 1 لاکھ کے قریب اپنی عظیم جانیں دی ہیں، انہوں نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں، عزتوں عصمتوں کی قربانیاں دی ہیں، اور ہر ہتھ کنڈا ہندوستانی فوج نے ان کے خلاف استعمال کیا، ہندوستانی حکومتوں نے ان کے خلاف استعمال کیا، لیکن وہ ان کے حوصلے توڑنے میں کامیاب نہیں ہو پائے. تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جو قومیں اتنی بڑی قربانیاں دینے کو تیار ہوتی ہیں، جن کے عزم یہ ہوتے ہیں، ان کے حوصلے دبائے نہیں جا سکتے، ان کی ڈیمانڈیں ختم نہیں کی جا سکتی، ان کو مدھم نہیں کیا جا سکتا. آج کے دن 3 سال قبل مودی حکومت نے کشمیر کے اوپر ایک اور وار کیا. جب وہ وہاں کے حریت پسند ہمارے بھائی بہنوں کے حوصلے توڑنے میں ناکام رہا، ان کی یکجہتی توڑنے میں ناکام رہا، تو پھر اس نے ہندوستان کے جبر کو بڑھاتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کے اندر ڈیموگرافک چینجز کے ذریعے ایسی قانون سازی کی کہ وہاں پہ کشمیری اور مسلم اکثریت جو ہے وہ اقلیت میں تبدیل کرنے کا طریقہ کار طے کیا جائے. انہوں نے کشمیر کو ہندوستان کا فارمل پارٹ ڈکلیئر کر لیا، اور ایسے قانون بنائے ہیں جن کے ذریعے وہاں پہ ہندوستان کے باقی علاقوں سے بسنے والے جا کے جائیدادیں خرید سکتے ہیں، وہ وہاں کی
शहरियत ले सकते हैं, वो वहाँ के शहरी बन सकते हैं, डोमिसाइल ले सकते हैं, वो वहाँ के वोटर बन सकते हैं। और इसको जितने बड़े, ये पाकिस्तान ने इसको अपने ऊपर, कश्मीर के ऊपर और अपने ऊपर एक हमला तस्वर किया है। यकीनन जितनी जद्दोजहद हमारे कश्मीरी भाइयों बहनों की है, पाकिस्तान की हुकूमत अपने तई मकदूर भर, हर हुकूमत में, किसी हुकूमत के खिलाफ बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान में जिसकी भी हुकूमत आई है, जिस भी तबका फ़िक्र से किसी का ताल्लुक़ रहा है, उसका तरीक़ाकार हो सकता है उतना मौसर और दुरुस्त ना हो, लेकिन उसके कमिटमेंट को हम चैलेंज नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त इस मुकदमे को अक़वाम आलम के सामने और ज़ोर से पेश करने की ज़रूरत है। हमें अपने मुल्क के अंदर भी, हमारी जो नई नस्ल है उस तक भी इस मुकदमे को पेश करने, इस मुकदमे को याद कराने और इसकी तारीख़ उनके जहनों में ताज़ा करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब शहीद भुट्टो ने कहा था कि हमें अगर खुदा न खास्ता कश्मीर की आज़ादी तवील होती है, हमें 1000 साल तक भी जंग लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे, ये तो 75 साल की जंग है, ये एक तवील और सब्र आज़मा काम है। हमें यकीनन पाकिस्तान को और अक़वाम आलम को, ये जो अक़वाम आलम का हम ज़मीर कहते हैं ना, इस ज़मीर को झंझोड़ते रहना होगा, उन्हें जगाते रहना होगा। कौमों के अंदर अपने तौर पे अपनी ज़िम्मेदारियाँ कम होती हैं और कौमें अपने मफादात से चलती हैं, लेकिन हमें अपना मुकदमा अक़वाम आलम के सामने बार बार रखना होगा। उसके लिए अलामती तौर पे आज पार्लिमान के सामने आए हैं। पार्लियामेंट को भी अपनी कमेटियों के ज़रिए, मीडिया को अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए, हुकूमत और फॉरेन ऑफिस को अपने जो इक़दामात हैं, इनके जो मिशंस हैं, उनके ज़रिए इस मुकदमे को दुनिया की यादाश्तों में ताज़ा भी करना है, इसको एग्रेसिवली आगे भी लेके चलना है और इसके लिए नए टूल्स भी दरियाफ्त करने हैं। क्योंकि हिंदुस्तान न सिर्फ इन कानूनों के ज़रिए बल्कि अब जदीद टूल्स के ज़रिए, वो मीडिया के प्रोपेगेंडा के ज़रिए, वो सोशल मीडिया के ज़रिए वहाँ के एक तरफ हौसले पस्त करना चाह रहा है, एक तरफ अक़वाम आलम के अंदर इस मामले को मद्धम करना चाह रहा है। तो हम कंट्रोल लाइन के पार अपने उन भाइयों बहनों से कहते हैं कि पाकिस्तान का एक एक बच्चा, एक एक फ़र्द, उसका ताल्लुक़ किसी भी तबका फ़िक्र से हो, वो अपनी इस कौमी ज़िम्मेदारी से आगाह है। हम आप पे एहसान नहीं कर रहे, हम अपनी तारीखी ज़िम्मेदारी और तारीखी अहद निभाने का दोबारा अहद करते हैं। हर साल इकट्ठे होते हैं, हर साल अहद करते हैं, और जब तक उनको उनकी आज़ादी नसीब नहीं होती और पाकिस्तान की आज़ादी मुकम्मल नहीं होती, हमारा ये मिशन भी जारी रहेगा। ना कंट्रोल लाइन के उस पार हौसले टूटेंगे, ना इस पार हौसले टूटेंगे। मैं तमाम पार्टिसिपेंट्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं फॉरेन ऑफिस को एक अच्छी रैली का इनेकाद करने पे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बड़ा अच्छा एहतमाम किया है और यही जज्बा हमें जारी रखना है। मैं मीडिया से भी गुजारिश करूँगा, इन दिनों के अंदर नहीं बल्कि अपनी प्रोग्राम, अपने नशरियात के अंदर हमें इसको एक रेगुलर हिस्सा बनाना चाहिए, ताकि अगली नस्ल को भी, अपनी जवान होती नस्ल को भी, हम मसला कश्मीर जितना, ये जो हम चंद लोग बैठे खड़े हैं सफ़ेद बालों वाले, हमारी कमिटमेंट का लेवल इसलिए कि हमारा पुराना एक रिश्ता है, नई नस्ल को हमने उस रिश्ते से आगाह करना है, सिर्फ उनके खून में ये बात शामिल है। तो हम इंशाअल्लाह ताला कश्मीर के इस मुकदमे के साथ हैं, इस जस्ट मुकदमे के साथ हैं, जो सिर्फ उनकी आज़ादी का नहीं, पाकिस्तान की आज़ादी की तकमील का भी प्रोग्राम है। बहुत शुक्रिया। नारे तकबीर! हम क्या चाहते है? हक हमारा, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, पाकिस्तान से रिश्ता क्या? सबसे पहले पाकिस्तान, पाक फौज, पाक फौज, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ख्वाजा साहब आपका, कायद साहब आपका, बाकी शुरका का वज़ारत ख़ारजा की तरफ से तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ ही इस तकरीब का एहतराम करते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं वज़ारत अमूर कश्मीर के तमाम एहलकारों को भी मुबारकबाद दूंगा, शाबाश कहूँगा, जिन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी अदा करते हुए इस तकरीब के अंदर, आज के दिन के हवाले से जो एहतमाम किया, जो उनकी ज़िम्मेदारी थी, मैं उनको और बाकी तमाम हुकूमत के महकमों के ज़िम्मे जो काम लगे थे, उन्होंने आसान तरीके से किए हैं।
ہم اپنا حوصلہ قائم رکھیں، انشاءاللہ یہ منزل ضرور ملے گی. بہت شکریہ. شکریہ انشاءاللہ، بہت بہت شکریہ. ایک جیل میں پیدا ہوا کہتا ہوا، حق جانوروں کی دنیا میں حق انسانوں کے بھولے، دنیا والے چپ بیٹھے ہیں ظالم کی رسی کھولے. اے جرم میرا پیدا ہونا، تو جرم کیا ہے میں نے، کیا زندگی میں نے جی ہوگی، بس ظلم سہا سی کر چپ کروائے جتنا